بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ ایک تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو ٹماٹر رگڑ لیں۔ جو بچوں کو دودھ پلاتے وقت پانی پیتی ہے اس بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک وقت میں 2 کام کرنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے ناریل کے تیل کی کلی کرنے سے دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگنا کم ہو جاتا ہے۔ اگر مچھر کاٹنے کے بعد کاٹنے کی جگہ پر دانہ بن جائے تو چمچ لے کر اسے تھوڑا سا گرم کر کے لگائیں۔ اس کی گرمائش اور جراثیم ختم کر دے گی۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو روزانہ رات کو سوتے وقت پیاز کا رس نکال کر رات کو بالوں پر لگائیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کنگھی میں لیموں لگا کر بالوں پر پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اگر پیٹ میں درد یا بہت زیادہ گیس ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف 1 منٹ کے لیے دبائیں۔ اس انگلی کی رگ آپ کی بڑی آنت سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور گیس دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ جو بھی دوائیاں چیز زبان کو کڑوی کرنے لگے تو جانو اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور لکھیں، اللہ آپ کو ہر حاجت پوری کرے گا۔
आटा गूंदते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करो, रोटियां बनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। मूली के रस में नमक शामिल करके 2 छटांग मिकदार के अंदर मरीज को पिला दो, पड़ी हुई तीली में वाज़ेह फर्क होगा। चंद किस्म की अमवात शहादत का दर्जा रखती हैं। हामला औरत का मरना शहादत का दर्जा है। पेट की बीमारी में मरना शहादत का दर्जा है। ताउन की बीमारी से मरना शहादत का दर्जा है। मलबे में मरने वाला शहादत का दर्जा रखता है। जिस औरत के पेट में बच्चा बन चुका हो और मौत आ जाए तो शहादत की मौत है। जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए मरा वो भी शहादत का दर्जा है। किसी की जान बचाते हुए मर जाना भी शहादत का रुतबा है। हक सच पर होते हुए मौत आए तो शहादत का दर्जा है। 5 चीजें जिस्म को खराब कर देती हैं। असर के बाद सोना, तकिया लगाकर खाना, बहुत ज्यादा गर्म चीज खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना और बाहर के खाने ज्यादा खाना। भूलने की बीमारी हो या यादाश्त कमजोर हो जाए तो दूध में बादाम और खजूर डालकर खा जाओ। आपकी यादाश्त इतनी मजबूत हो जाएगी कि 70 साल तक कोई बात नहीं भूलेगी। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है वो हर हफ्ते नींबू का रस, बंद गोभी और पालक का ज्यादा इस्तेमाल करे। ठंडा टमाटर काट कर चेहरे पर मलने से चेहरे पर काले निशानात खत्म हो जाते हैं। गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से मालिश करने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर सुबह चेहरा धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर दिए जाए तो चेहरा नर्म और खूबसूरत हो जाता है। कलौंजी के तेल को जोश देकर नीम गर्म करके सर पर लगाओ, सर दर्द और नज़ला जुकाम दूर हो जाएगा। रोजाना निहार मुंह भुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज चलेगा। ज्यादा गुस्सा करने से मोटापा आता है, गुस्से से परहेज करें। किशमिश इंसान को जल्द बुढ़ापे से बचाती है। अगर ख्वाब में खून दिखाई दे तो हराम माल पाने की तरफ इशारा है। काली मिर्च जरासीम का खात्मा करती है और गले की सोजिश में नहायत ही मुफीद है। हमेशा भूख रख कर खाना खाया करो, कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होगी। अगर आप दिन में 12 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो चंद सालों में आपकी मौत का 60% इम्कान है। अंगूर खाने के बाद कभी पानी इस्तेमाल ना करो, बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। अजवा खजूर खाओ, ये जिगर और पेट के कैंसर को रोकने में बहुत ही मुफीद चीज है। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर दो। कुछ देर रखने के बाद धोने से कड़वाहट दूर हो जाएगी। गोभी पकाते वक्त अगर सालन के अंदर एक छोटा सा डबल रोटी का टुकड़ा डाल दें तो गोभी से बदबू नहीं आएगी। अगर नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो कोई दवाई इस्तेमाल ना करो, बल्कि उल्टे पांव चलने से कान से पानी निकल जाएगा। ज्यादा सोचना इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ज्यादा सोचने से नींद अच्छी नहीं रहती। ज्यादा सोचने से सर दर्द करेगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। आपके जूते ही वो पहली चीज है जिसको लोग सबसे पहले आपको देखते ही नोटिस करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनो। तहकीक से पता चला है कि महबूब की जुदाई के दुख में रोने वाले लोगों का वजन दुख से कम हो जाता है। इम्तिहानात में कामयाबी के लिए ये काम करें। तवज्जो और लगन के साथ पढ़ें। अपनी नींद का खास ख्याल रखें। जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले सूरह अलम नशरह पढ़कर सीने पर दम करें। दमा की बीमारी में शाम के वक्त एक खजूर दूध में डुबो कर खा लेने से आहिस्ता आहिस्ता दमा की बीमारी दूर।
दिल के मरीज चंद माह संगतरे इस्तेमाल करो। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकाल कर दांत पर रुई के साथ लगाओ, मुंह को खुला छोड़ दो, मवाद निकल जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। डेंगू बुखार के मरीज को अव्वल व आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़कर सुबह शाम दम करें और पानी पर दम करके पिला दें। साथ साथ तिब्बी इलाज जारी रखें। अल्लाह के फजल से मरीज सेहतयाब हो जाएगा। खाने के फौरी बाद हम बिस्तरी करने से मोटापा जल्दी आ जाता है। जमाई रोकने की कोशिश न करें वरना दिमाग की रग फट सकती है। अगर बीवी गुस्से में हो तो उसे चंबेली का फूल सुंघा दो। अगर बीवी नाराज हो तो रात को मीठी चीज खिलाओ, जल्दी राजी हो जाएगी। ज्यादा नहाने वाला बंदा उम्र भर फालज की बीमारी से महफूज रहता है। गीले कपड़े पहनने से खारिश की बीमारी हो सकती है। सिर्फ ये 3 बातें किसी भी इंसान को ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है। आसमानी बिजली की कड़क, जलजले के झटके और बुढ़ापे की बेबसी। क्या आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट की तरह हर एक इंसान का जुबान का प्रिंट भी सबसे मुख्तलिफ होता है। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो लौंग वाला पानी भी पी लो, जिस्मानी ताकत उभर आएगी। टेक लगाकर खाना मत खाएं वरना सांस की बीमारी होने का खदशा होता है। ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने वाली खवातीन अक्सर औकात बदहजमी, सर दर्द, दांतों की बीमारी और बेख्वाबी का शिकार रहती हैं। कपड़ों पर खुशबू लगाकर सोने से यादाश्त कमजोर हो जाती है। हमेशा जवान नजर आना चाहते हैं तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाया करें। पालक पकाते वक्त 1 खाने का चम्मच सिरका डालो। सिरका डालने से रंग ताज़ा रहता है। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो। बूढ़े जवान हो जाओगे मगर तुम्हारा मैदा कभी खराब नहीं होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा तो आज के दिन पर गौर करो कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या कर रहे हो। खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करो क्योंकि ये सेहत के लिए निहायत ही नुकसान होता है। अगर आपका गला दुखता हो तो हल्दी और शक्कर का 1-1 चम्मच लेकर उसे पका लें और गर्म दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इंशाअल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। नीम गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी लग सकती है। नहाने के फौरी बाद सुरमा मत लगाओ वरना नज़र कमज़ोर हो जाती है। जिन बच्चों का कद छोटा रह गया हो उनको दूध में खजूर डालकर खिला दिया करें, इससे कद बढ़ने लगेगा। बराए मेहरबानी आज का नुस्खा नोट फरमा लें। नाजरीन, झटके मार मार कर थक जाओगे मगर फारग नहीं होंगे। सिर्फ ये एक चीज़ खाकर हम बिस्तरी करो। नाजरीन, जिस्मानी कमज़ोरी, मिनी का गाढ़ापन दूर करने के लिए मूसली, सफ़ेद अंडिया 30 ग्राम, अकर कराह 30 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, इन तमाम अशिया को मिलाकर अच्छी तरह पीस कर सफ़ूफ बना लें और इस सफ़ूफ को सुबह शाम 1 कप दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके अंदर 10 मर्दों के बराबर मर्दाना ताकत आ जाएगी। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।